Hello everyone, welcome back to Knock Knock AR Education, and here is another lecture on the complete course on integral calculus. So today the topic that we are going to study is change of order of integration. Okay, so the topic that we are going to start today is change of order of integration. But before starting this topic, let me tell you one thing, that this is very important topic. Okay, every year you will see one question from this topic, that is change of order of integration. So you have to understand what is change of order of integration and how we are going to implement it in the questions and even in the exams. Okay, but before that, I hope all of you have watched 3 lectures which I took on the basic concepts of double integrations, because if you have understood those lectures, then it would be very easy for you to understand the topic change of order of integration. Okay, so let's get started with this topic. As you can see, the name itself is saying something, change of order of integration. Okay, suppose this is our double integral and we want to solve this. Okay, so suppose you are integrating it with respect to x first. Okay, you are integrating it with respect to x first, and then you are integrating it with respect to y. So what is the order? That first you are integrating it with respect to x and then you are integrating it with respect to y. But sometimes what will happen is that suppose here your limit for x was from g of y to h of y, and the y of limit was in terms of real numbers, then it is obviously compulsory for you to integrate this integral initially with respect to x and then with respect to y. But in few questions you will see that it is not possible for you to integrate it with respect to x. It means you have to integrate with respect to x, but you are not able to do that. Okay, so change of order of integration is saying that if it is not possible for you to integrate the integral with respect to x, then change the order. Change the order means you integrate with respect to y first and then you integrate it with respect to x, because it is not possible for you to integrate the integral with respect to x. It means change of order of integration is just a way to solve a complicated integral in a simpler form. It is not any other process or method. It is just a way to solve an integral which is not possible for us to solve in a very simple way. Okay, so we'll just apply change of order of integration. Okay, so for this what you have to do is that we will understand it with one example. Okay, let's see, I have given you a question from 0 to 1, then I gave you from e raised to the power x to e dx dy by ln y. Okay, I gave you this question to solve. So as we have discussed in the previous lectures, we can see that the limit of y is in terms of x. It means I have to integrate this integral with respect to y first and then I'll integrate it with respect to x. But is it possible for me to integrate 1 by ln y? Of course not. I cannot easily solve the integration of 1 by ln y. It means I cannot do this. So what I am going to do is that I will change the order. I will change the order of the integration. That means I'll integrate it initially with respect to what? With respect to x and then with respect to y. Okay. So now what we can do is that for this we have to understand a process, that how we will do this. So I hope now you might have understood what is the change of order of integration, why we are doing this. As the name itself suggests, that change the order of integration, it means we are changing the order of an integration which is not possible for us to solve it easily. That is why we are changing the order. Fine. So now how we will do that? Because suppose this is being given to you double integral, and some limits will be given to you. So what you will do, you will just write down the limits. Okay, write down the limits. And now next what will you do? You will, with the help of these limits, you will draw what? You will draw your region of integration. Fine. This is just a theory. Once I'll start doing the questions, it will become much easier for you. You will draw the region of integration. Now the process you know very well. Suppose
आपके पास यहाँ पे x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y दी होती तो आपको विद रिस्पेक्ट टू x पहले सॉल्व करना पड़ता है, बट वो नहीं हो रहा है, मतलब आपको पहले विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करना है। मतलब यू वांट लिमिट ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, तो आप क्या करोगे, पैरेलल टू y एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दोगे और फिर लिमिट्स निकाल लोगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x दी होती तो आप पहले y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हो, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो अब आपको x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो आप पैरेलल टू x एक स्ट्रिप ड्रॉ कर देना एंड देन यू विल वेरी इजीली गेट योर आंसर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस टॉपिक इज, बट नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक thoroughly with the help of examples. Okay, so first example that I gave to all of you was this. Let me just solve it. It is 0 to 1, then we have e raised to the power x to e dx dy by we have ln y. Okay, now whatever the basic concepts we have learned in previous classes, I know that the limit of y is in terms of x. It means I have to integrate this integral initially with respect to y, but I cannot integrate 1 by ln y. I do not know the way how to integrate ln y. That means I have to change the order. It means this question is from where? This question is from change of order of integration. Okay, so this is the question from this topic. ऐसे ही आपको एग्जाम में भी पता करना है. जस्ट सी, ओके आई हैव टू इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई, बट यहाँ पे जो फंक्शन दिया है वो हो नहीं पा रहा है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ऑर्डर चेंज करना है. तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि आप लिमिट्स को लिख लो, जो भी लिमिट्स आपको दी हुई हैं. क्या दी है, x इक्वल्स टू 0, देन यू हैव x इक्वल्स टू 1, यू हैव y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, देन यू हैव y इज इक्वल्स टू e. अब आपको मैंने क्या बोला, लिमिट्स की हेल्प से आप क्या करो, लिमिट की हेल्प से आप रीजन बना लो क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो हम यहाँ पे रीजन बना लेते हैं. y इज इक्वल टू ई की पावर x सबको पता होगा, दिस इज योर y इज इक्वल टू ई की पावर x. अब ये x एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये y इक्वल टू 0 x एक्सिस होगा, एंड ये हमारे पास y एक्सिस है, मतलब x इक्वल टू 0, तो आपको x इक्वल टू 0 रखोगे तो y 1 मिलेगा, मतलब ये 0,1 पॉइंट है, राइट. तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इज योर 0,1 पॉइंट. अब आपको बोला है x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 होगा. अब कोई भी कर्व ऐसे ही रैंडमली बनाने से पहले काम किया करो, जब कभी भी गिवन दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो. दैट विल गिव यू एन आइडिया कि जो तीसरा कर्व है वो कहाँ से जा रहा है. ठीक है, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, इस कर्व में जब आप x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, e मिल रहा है, तो यानी कि 1, e हो गया. अब देखो तीसरे कर्व का हमें एक आइडिया मिल गया, y इज इक्वल टू ई कर्व जो है वो इसका मतलब इसी लाइन से जा रहा है, इसी पॉइंट से होता हुआ जा रहा है. तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया क्या, अपना y इज इक्वल टू ई. अब हमें रीजन मिल चुका है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो अभी मैं आपको समझाऊंगी 2 मिनट में. कुछ बच्चे क्या होंगे, ए वाला रीजन चूज़ करेंगे, मतलब मेरे कहने का ये वाला रीजन चूज़ करेंगे. ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, बी वाला रीजन चूज़ करेंगे. काम करते हैं, ये पॉइंट बाहर लिख देते हैं. ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर, दिस इज योर 0,1 पॉइंट. ठीक, तो कुछ बच्चे बी वाला रीजन चूज़ करेंगे, यानी ये वाला. कन्फ्यूजन कहाँ है कि समझ ही नहीं आ रहा है. एक तो तरीका मैं आपको ये बता सकती हूँ, हमेशा लिमिट्स की हेल्प ले लो. लिमिट्स की हेल्प जब आप लेना शुरू करोगे, कभी भी आप रीजन को चूज़ करने में गलती नहीं करोगे. कैसे, आपको x बोला है 0 to 1, ओके, x जब बोला है 0 to 1, इसका मतलब ये आपके पास x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 1 है, मतलब इतने पोर्शन की बात करी जा रही है, राइट. इतने ही पोर्शन में हमें रहना है क्योंकि हमें लेफ्ट टू राइट जाना है. ठीक है, अब y की लिमिट क्या बोली है, बॉटम से टॉप जाते हैं हम लोग, e रेज टू द पावर x से e, ये y इज इक्वल टू ई लाइन है. ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू, तो e की पावर x तो ये था, e ये था, मतलब बॉटम से टॉप ऐसा गए हैं. कहीं पे भी स्ट्रिप ड्रॉ करी होगी इन्होंने, ऐसे ही ड्रॉ करी होगी, देखो तो समझ आ गया ना. यहाँ पे x इक्वल टू 0 to 1 जा रहे हैं और y e रेज टू द पावर x से e जा रहे हैं. मतलब हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन रहा है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बना ए वाला पोर्शन. ठीक है, ए वाला पोर्शन. अब थोड़ा सा और क्लैरिटी मैं आपको दे देती हूँ. यहाँ देखो, आपको जो कर्व दिए थे वो क्या क्या थे, एक था y इज इक्वल टू ई की पावर x, दूसरा था x इक्वल टू 1, तीसरा है x इक्वल टू 0, और चौथा क्या था आपके पास, ये y इज इक्वल टू ई. लेकिन गलती से अगर किसी ने यहाँ पे y इक्वल टू 0 लिख लिया
सपोज आपने ये वाला रीजन चूज़ कर लिया, तो आप समझ भी सकते हो आपने गलती कैसे करी है। अगर आप ये वाला रीजन चूज़ करोगे तो देखो y इज इक्वल टू ई की पावर x आया, x इक्वल टू 1 आया, x इक्वल टू 0 आया, बट एक और कर्व इंक्लूड हो रहा है विच इज़ y इज इक्वल टू 0, जो कि आपको दिया ही नहीं है, आपको तो x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब कभी भी आप रीजन ड्रॉ करो, यू जस्ट सी कि जिन भी कर्व से वो रीजन बाउंड होके बन रहा है, क्या वो कर्व आपकी लिमिट्स में था या नहीं था। अगर नहीं था, मतलब द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन यू हैव चोजन इज रॉन्ग. फाइन. सो नाउ वी गॉट आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन either with the help of the limits or from the basic understanding that this is our region of integration bounded by x equals to 0, x is equals to 1, y is equal to e and y is equal to e की पावर x. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, हमें सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना था, बट पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था 1 बाई एल एन वाई को क्या करना, इंटीग्रेट करना. तो मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते हैं, पहले हम अब सॉल्व करना चाहते हैं पहले x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में तो हुआ नहीं, तो मतलब मुझे x की लिमिट क्या चाहिए होगी इन टर्म्स ऑफ y. ठीक है, x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, पैरेलल टू x एक्सिस एक स्ट्रिप ड्रॉ करूँगी. पूरे रीजन में कहीं पे भी ड्रॉ करो, आप देखो ये कहाँ से कहाँ जा रही है, x इक्वल टू 0 से, ये y इज इक्वल टू ई की पावर x है, तो यहाँ से अगर आप x निकालोगे तो वो क्या आएगा आपके पास, एल एन वाई ही तो आएगा. तो मतलब ये x इक्वल टू 0 से कहाँ जा रही है, x इक्वल्स टू एल एन वाई. तो इसी इंटीग्रल को आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो x इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू एल एन वाई. और बॉटम से टॉप जाना होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट ये है 0,1, मतलब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 है, और टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ है, तो ये पूरा टॉप मोस्ट पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू ई है. और अब आप देखो हमने ऑर्डर बदल दिया है, क्यों, क्योंकि अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं dx dy ना लिख के मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू राइट डाउन dy dx. नाउ यू सी द ऑर्डर हैज़ बीन चेंज्ड. पहले ऑर्डर था dx dy, अब हो गया है dy dx. और अब देखो बहुत इजीली सॉल्व होगा, क्योंकि मुझे पता है अब मुझे पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रीट y एज अ कांस्टेंट, जो बेसिक रूल हमने पढ़ा है. तो x आ जाएगा 0 से एल एन वाई एंड दिस इज योर डी वाई. अब आप देखो ये क्या बनेगा, 1 टू ई 1 बाई एल एन वाई, यहाँ पे क्या आएगा एल एन वाई माइनस 0 डी वाई, एंड नाउ एल एन वाई विल गेट कैंसल्ड आउट बाई एल एन वाई, सो वील जस्ट गेट 1 डी वाई, that is going to be y from 1 to e. Answer is coming out to be e minus 1. So if you are going to substitute e as 2.7 minus 1, answer you will get is what, 1.7. Fine. Now I hope the concept of change of order of integration is very clear. That suppose we have a domain G, okay, and here we have f of x comma y dx dy. So what we are doing, we are changing the order from dx dy to dy dx. That is, if initially we were integrating with respect to x, which was not possible for us, so now we are integrating it with respect to y. Or if initially we were integrating with respect to y, which was not possible for us, so now we are integrating it with respect to x. Fine. So this is our change of order of integration. But ये टॉपिक ऐसा है जिसमें हमें समझ तभी आएगी, टॉपिक पे क्लैरिटी तभी होगी जब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हों. तो यहाँ पे हमारा इस टॉपिक में मेन पर्पस जो होगा वो क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होगा, क्वेश्चन में ऑर्डर चेंज करना होगा. मतलब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के बाद लिमिट्स क्या हो गई हैं, क्योंकि एग्जाम में वही आपको काम आएगा. ठीक है, सो नाउ वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चंस. जहाँ पे फंक्शन एफ ही लिखा होगा, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ऑर्डर चेंज करके लिमिट्स बतानी है. तो आज हम ये करेंगे. इन द नेक्स्ट सेशन में हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, विल ट्राई टू फिनिश ऑल ऑफ देम. ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन दैट वी विल बी डूइंग टुडे. So the very first question that we will do for changing the order is, suppose we have been given from a to b and then we have from a to x. This is our function. Then we have what, dx dy. Okay, and now we have been asked to write down the limits after changing the order. Okay, this is your dy dx. We have to change the order. So what we will do, the very first step I told all of you, you just write down the limits. X is equals to a, x is equals to b. Just
remember one thing, right now we are focusing on what? On finding out the limits after changing the order of integration. Once we will learn them, we will just solve the complete questions. Okay, and then what we have, y is equals to a, y is equals to x. Fine. Now we have to change the order. So what we will do, we will just draw what? We will just draw the region of integration. So this is our y is equals to x. Fine. Suppose this is our x is equals to a. So what point of intersection it is going to be? A comma a, because it is y is equal to x. Then we have x is equals to b also. Fine. So x is equals to b, what we will have point of intersection? B comma b. So the fourth curve is automatically, we got point now, that this is y is equal to a, it will pass from here. Fine. So this is your y is equals to a. So hope all of you can understand the region now. If not, then see here. What they are saying, that your x is going from a to b. Okay. If x is going from a to b, it means we are on this strip, right? Then what we have to see, your y is going from where to where? A to x. Your y is equals to a is this, y is equal to x is this, and x is equal to a to x is equal to b. It means this is the region they all are talking about. Fine. So this is very important for you to understand the region. And here what was the case? They have written the limit of y in terms of x. It means we have to write down the limit of x in terms of y, because we will change the order. So we will draw a strip which is parallel to x axis. And see, in this region, anywhere if I am drawing this strip, it is always going from where to where? From x is equal to y to x is equal to b. So what we will write? From x is equal to y to x is equals to b. Then we have to go from bottom to top. Bottom is your y is equals to a, and top is your what? Y is equals to b. See? So after changing the order of the integral, the answer that we are getting is this. Fine. Let's move to the next question. Slowly we'll increase our level so that we can actually understand what is happening in the questions. Okay. Let's do one more question. Suppose we have been given like from 0 to infinity. Then we have from x to infinity, e raised to the power minus y by y, and then we have here dx dy. Okay. Now you see one thing. Here what we have to do is, we have to integrate it with respect to y first. Why? Because the limit of y is in terms of x. But it is not possible for me to integrate e raised to the power minus y by y. It simply means this is a question from change of order of integration. I have to change the order to integrate this integral. So what I'll do, I'll just write down the limits. X is equals to 0, x is equals to infinity, y is equals to x, y is equal to infinity. Then next what I'll do, I'll draw the region of integration. Okay. Remember one thing, it is not correct to write x is equals to infinity or y is equals to infinity, because they are not the, if we are working on minus infinity to infinity, but for the simplicity we are considering them. So this is your x is equals to 0 and this line is your y is equals to x. But कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं कंसीडर कर ले रही हूँ कि ये x is equals to infinity. Actually that is not the case. We do not know where x is equals to infinity lies. ये एक अनबाउंडेड रीजन होगा, बट समझाने के लिए मैं इसको x is equals to infinity कंसीडर कर ले रही हूँ. ठीक है. एंड y is equals to infinity फिर कहाँ होगा? बिकॉज ये इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी बनेगा, तो y is equals to infinity हमारे पास ये बन जाएगा. ठीक है. नाउ वी हैव टू चूज द रीजन. Again, you just have to understand x equals to 0, y is equal to x, x infinity, y infinity we consider. One way is to go through the limits. Okay, how? You see, your x is from 0 to infinity. It means we have to work in this infinite strip. Okay, then your y is from x to infinity. Y is from x to infinity. It means x from 0 to infinity, y from x to infinity. This is our region. Okay, अगर यहाँ से समझ नहीं आता है, ठीक है, तो हमको पता है चार कर्व से बाउंडेड होने वाला यही है. हम ये वाला रीजन नहीं चूज कर सकते. क्यों? क्योंकि वहाँ y इक्वल टू 0 भी है और वो तो हमारे पास कर्व्स में लिमिट्स में मेंशन ही नहीं था. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. फाइन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिट. आई टोल्ड यू दैट एक्चुअली ये रीजन जो होगा वो अनबाउंडेड होगा.
ठीक है, ये आपके पास लाइन ऐसे ही चलती चली जाएगी और ये पूरा रीजन यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सब होगा अनबाउंडेड। बट फिर आपको लिमिट समझाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए मैंने मान लिया है कि y इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, बट एक्चुअली है नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, अब वी वांट द लिमिट एंड हमें ऑर्डर चेंज करना है, मतलब हमें पहले x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। तो वी विल ड्रॉ अ स्ट्रिप विच इज़ पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू x एक्सिस। और इस पूरे रीजन में आप कहीं भी ड्रॉ करोगे, ये कहाँ से कहाँ जा रही है, देखो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल्स टू y। तो ये क्या बन जाएगा, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू y। बॉटम पे y इक्वल टू 0 था, टॉप पे y इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, मतलब y इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस y बाय y। एंड यहाँ देखो ऑर्डर चेंज हो गया, dy dx हो गया। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व इट। सो व्हाट वी विल गेट, now we have to integrate first with respect to x, so we will deal y as a constant. So what we are getting is 0 to y and then dy. Now when you will apply the limits, you will get y minus 0 which is y, and that y will get cancelled out, so you will get like this. Fine, and now you can very easily integrate. See, the integration which before some time you were not able to solve because you do not know how to integrate e raised to the power minus y by y, now it became so simple to integrate it. That is why change of order of integration is making our complications a little less complicated. We are able to solve our integration, we are able to integrate a double integral which we were not able to solve initially. Okay, so here what it is going to be, e raised to the power minus y 0 to infinity, e raised to the power minus infinity 0, and here comes our what, खतरे का निशान, because e raised to the power 0 is going to be 1. जल्दबाजी में हमें इसे 0 नहीं लिखना है एग्जाम में, तो आंसर कितना आ गया, 1. So the answer for this double integral which we were not able to solve first, but after applying change of order of integration we are able to solve is 1. Okay, so I hope अब आपको धीरे धीरे change of order of integration का थोड़ा सा तो आइडिया लग रहा होगा. ठीक है, okay, let's go to few more examples to understand actually the change of order of integration. Okay, so the next question that we have is 0 to 1, then we have y to 1, x square, then we have cos x square minus xy, and here we have dy dx. Okay, if you will see this question, fine, so here you have to integrate initially with respect to x. Okay, so you can do it, but it is going to be a little complicated and little lengthier. Okay, and maybe most of you cannot solve it. So what we will do now, what we have to do now, I understood that I have to change the order. Okay, because we have to integrate first with respect to x. Here we have cos x square minus x square. How will I do it? So now I'll change the order. What I'll do, I'll write down the limits. X is equal to y, x is equals to 1, we have y equals to 0, and we have y is equal to 1. Now what I'll do, I'll just draw the region of integration. So this is our what? This is our y equal to 0. Okay, this is our x equals to y. Then we have here x is equal to 1. So this is going to be our 1 comma 1 point. Okay, so your y is equal to 1 will pass from here only. Now we have to change what? Sorry, we have to find out our region of integration. तो region of integration हम कैसे पता करेंगे? या तो लिमिट से देख लो, कहाँ से कहाँ, y 0 से 1 जा रहा है, ये y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 1 है. x कहाँ से कहाँ जा रहा है, y से 1, तो x के लिए इन्होंने स्ट्रिप ड्रॉ करी होगी ऐसी, तभी तो x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y है, इन्होंने पैरेलल टू x ड्रॉ किया होगा, तो x इज इक्वल टू y से 1 जा रहा है, मतलब ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. अदरवाइज ये वाला मत चूज कर लेना, क्यों? क्योंकि यहाँ यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट, बट वो तो हमारे पास लिमिट्स में दिया ही नहीं है, तो ये इतना काम हो गया. अब हमें क्या करना है, हमें तो y की लिमिट चाहिए इन टर्म्स ऑफ x. सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सिंपली ड्रॉ अ स्ट्रिप विच इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो ये कहाँ से कहाँ जा रही है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू x. तो व्हाट यू विल सिंपली डू, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x, और लेफ्ट टू राइट जाने पे x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 1. दिस इज योर x स्क्वायर cos x square minus xy, then we have dx dy. सी ऑर्डर चेंज हो गया, dy dx से हम कहाँ आ गए, dx dy पे. एंड अब I know here I have to integrate initially with respect to y. So what I will do,
I will treat x as a constant. So this is going to be what? Sine. Then you got x square minus xy. And since I am integrating it with respect to y, here I will get minus x also. And this is your y is equal to 0 to y is equal to x dx. ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे माइनस एक्स मिल जाएगा. अब आप जब y की लिमिट x रखोगे यहाँ पे तो आपको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे जब आप x रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन 0 इज 0 माइनस, जब आप y इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, साइन एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स. सो व्हाट इंटीग्रल यू गॉट, 0 to 1 x sin x square dx. See, the integral which you were not able to solve initially, now you are getting the answer of it. And why it became possible? Just because we applied change of order of integration. So what we have to do, 0 to 1 x sin x square dx, and this is a basic substitution problem you might have learned in your class 12. We'll consider x square is equal to 2, so we'll get 2x dx is equals to dt. Limit will remain same, x is 0, so t will also be 0, x is 1, so t will also be 1. So x dx is going to be equals to dt by 2, so this is sin t by 2, this is your dt. So we'll get minus 1 by 2 cos t, and here is from 0 to 1, so this is your cos 1 minus cos 0 is 1. So answer that you are getting is 1 minus cos 1 by 2. This is the answer for this question. So see, the question which you were not able to solve initially, here is the answer for this question. And why it became possible? Just because you know a topic which is called as change of order of integration. So this is how this change of order of integration helps us in solving various integrals which are very complicated, but once we will change the order, we will get the answer. Okay, so let's go to another question. This was our question number 3. We are coming to question number 4 to see what next we can do. Okay, so we have 0 to a, and then we have x a square by x, then we have f of x comma y dx dy. यहाँ पे आपको ऑर्डर चेंज करना है क्योंकि फंक्शन नहीं पता है, तो वी विल ऑब्वियसली नॉट इंटीग्रेटेड. अगर आप थोड़ा सा पहले के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको, या फिर अगर आप एमएस वगैरह के क्वेश्चन देखोगे, यू विल सी कि वहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सपोज ये क्वेश्चन दिया है, नाउ यू आर सेइंग कि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग, इसको हमने एफ ऑफ वाई जी ऑफ वाई कर दिया है, तो दे विल से दैट एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई इज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन. So you should know how to change the order of integration and how to find out the limits after changing the order. So अगर आपकी limits ठीक होंगी तो obviously you will get the correct answer. इंटीग्रल ही तो सॉल्व करना है, बट सबसे पहला काम है कि हमको लिमिट निकालना आ जाए. तो यहाँ पे हमको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगा के फाइंड आउट करना है कि लिमिट्स क्या होंगी. ओके, सो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, ऑब्वियसली हम लिमिट्स को लिखेंगे. तो हमारे पास लिमिट्स क्या दी हैं, y इज इक्वल टू एक्स, देन वी हैव y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स. ओके, देन वी हैव x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू a. तो सबसे पहले तो रीजन ही ड्रॉ करना है. चलो ड्रॉ करते हैं. This is our x axis. Okay, let's draw it in a fine. So now what we have to do, we have to draw first of all y is equals to x. So we will draw our y is equals to x line. So this is going to be like this. Okay, y is equal to x line. Then if you will see here, we have x is equal to 0. So this is like this. So we have drawn two curves. The one is x is equal to 0. One is your y is equal to x. Okay. Another one we will draw later on. But you just understand this curve. Okay. Y is equal to a square by x. Most of you have already learned from me that y is equals to k by x. This represents what? This represents a rectangular hyperbola. Okay. So if k is greater than 0, the rectangular hyperbola is going to be where? In the first quadrant and in the third quadrant. If k is negative, it is going to be in the second quadrant and fourth quadrant. But since it is a square, so obviously a square is greater than 0. So we will draw the rectangular hyperbola where? In the first quadrant and in the third quadrant. But we will not draw it in the third quadrant also. Why? Because the limit of x is from 0 to a. So obviously upper limit is greater than the lower limit. So a is greater than 0. Okay. So
here we are going to draw our rectangular hyperbola. Okay, this is our rectangular hyperbola. अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था कि अगर आपको दो कर्व कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पहले आप उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, उसके बाद ही तीसरा कर्व ड्रॉ करो. अदरवाइज अब आपको ये नहीं पता x इज इक्वल टू ए जो है वो कहाँ से जाएगा, वो यहाँ से जा रहा है या यहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है. सो जैसे ही आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे आपको आइडिया मिल जाएगा. तो आपके पास दो कर्व हैं, एक है y इज इक्वल टू एक्स, दूसरा है y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स. इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें. सो व्हाट यू विल डू, you will simply do like this. So x square is equals to a square, you got x is equal to plus minus a. तो आप देखो ना यहाँ पे भी तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा होता, तो माइनस ए उसके लिए था, तो हमें यहाँ पे a मिल गया. अब ये a मिल गया तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है तो ये भी a ही होगा. तो देखो अब चौथे कर्व का हमको आइडिया मिल गया ना कि x इज इक्वल टू a जो है वो हमारा यहीं से पास हो रहा है. ठीक है, और अब हमको निकालनी है क्या, लिमिट्स निकालनी है. ठीक है, तो लिमिट निकालने के लिए पहले तो हमें देखना है रीजन क्या है हमारा, जो कि सबसे पहला कंफ्यूजन पॉइंट होता है. तो पहली बात तो या तो आप क्या करो, या तो आप लिमिट्स की हेल्प ले लो. क्या दी है, x इज इक्वल टू 0 से a. x इज इक्वल टू 0 टू a का मतलब इतने ही पोर्शन में काम चल रहा है. ठीक है, देन आपकी y की लिमिट क्या दी है, x से बॉटम से टॉप जाते हैं इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे, कहीं पे भी स्ट्रिप ड्रॉ करो. तो इसका मतलब हमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मिल गया क्या. Yes, we got our region of integration and this is our region of integration. Fine. अब देखो गलतियां होने के चांसेस, आप इसको भी चूज़ कर सकते थे, इसको भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले ही बताया इन दोनों में y इक्वल टू 0 आ रहा है और y इक्वल टू 0 हमें कहीं पे भी लिमिट्स में दिया नहीं. ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, और किसकी, x की विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि ऑर्डर चेंज करना है हमको. सो हम क्या करेंगे, हम पैरेलल टू x स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे. तो सपोज किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे, लेट मी जस्ट टेक अनदर कलर, किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे स्ट्रिप ड्रॉ करी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये कहाँ से कहाँ जा रही है, x इक्वल टू 0 से x इज इक्वल्स टू y पे. बट वहीं पे एक दूसरा स्टूडेंट था, उसने बोला मैम आपने तो बोला है कि रीजन में हम स्ट्रिप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं, तो उसने यहाँ स्ट्रिप ड्रॉ कर दी. अब लेकिन देखो कहानी बदल गई. यहाँ पे जो स्ट्रिप है वो x इज इक्वल टू 0 से कहाँ जा रही है, x इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या कर्व है, ये है ना, ये वाला. तो x इज इक्वल टू कहाँ जा रहा है, a स्क्वायर बाय y पे जाने लग गया. इसका मतलब है जो हमने पीछे भी समझा हुआ है, क्या समझा हमने, कि जो आपके पास स्ट्रिप है वो पूरे रीजन में एक ही कर्व से दूसरे कर्व पे जो जा रही है वो दोनों कर्व सेम नहीं है, वो कर्व्स बदल रहे हैं. और ये बदलाव किस पॉइंट से आ रहा है, इस पॉइंट से 0, a, y इक्वल टू a लाइन से ये चीज़ें बदल रही हैं. अब आप देखो ये आपके पास 0 0 है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a पे चले जाओ, कहीं पे भी स्ट्रिप ड्रॉ करो इस ट्राइंगल में, हमेशा 0 टू y पे ही जा रही है. और a से लेकर अब ऊपर तो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं. a टू इन्फिनिटी पे स्ट्रिप हमेशा कहाँ जा रही है, 0 से a स्क्वायर बाय y पे. इसका क्या मतलब है, ऑलवेज इट कैन नॉट बी द केस कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करने पे हम एक इंटीग्रेशन से एक ही इंटीग्रेशन पे रहें. वो स्प्लिट होके 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में भी हो सकता है. ठीक है, सो नाउ वी विल राइट डाउन आवर फाइनल आंसर. तो सबसे पहले हम कहाँ पे हैं, y इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू a पे. आई होप ये आपको नज़र आ रहा हो, y इक्वल टू a, देन हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू 0 टू a. इसमें कहीं पे भी आप स्ट्रिप ड्रॉ करोगे वो कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू y पे, एंड f ऑफ x कॉमा y, दिस इज योर dy dx. फाइन. नेक्स्ट देखो, अब अगली बारी क्या हो रहा है, अब हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं. y इज इक्वल टू a से अब हम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं. ठीक है, यानी y इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. उस केस में x हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x तो हमारा 0 से कहाँ जा रहा है, a स्क्वायर बाय y पे जा रहा है. ठीक है, दिस इज योर f dy dx. तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करने पे कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमारा एक इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रेशंस में स्प्लिट हो, या 3 इंटीग्रेशन में स्प्लिट हो, या एक में भी हो सकता है, जैसे हम पीछे भी देखते आ रहे थे. ठीक है, सो इन एग्ज़ाम आपको सपोज यहाँ पे कोई दे देते कि ये g ऑफ y है
एंड सपोज इसको दे देते कि ये एच ऑफ वाई है, और फिर आपसे पूछ लेते कि जी ऑफ वाई बाय वाई एंड माइनस का अगर आपको या प्लस कह देते यहाँ पे क्या, सपोज एच ऑफ वाई, ये क्या होगा, ऑप्शंस बना देते, तो आप देखो दिस इज योर वाई बाई वाई प्लस ए स्क्वायर बाय वाई, ओके, सो ये कैंसिल आउट हो गया, या सपोज यहाँ पे भी वाई लगा देते, ठीक है, तो काम हो जाता अपना. सो लाइक दिस यू कैन वर्क, तो 1 प्लस ए स्क्वायर आ जाता. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एग्जाम में कैसे क्या पूछा जा सकता है, सो दैट इवन इफ वन ऑफ द टाइप कम्स यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स डू फ्यू मोर क्वेश्चंस for the practice purpose so that we can very clearly understand how to find out the limits after changing the order of integration. अगर आप ये सीख गए, कोई भी क्वेश्चन होगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस का, सब सॉल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है. सो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5. Okay, so the question number 5 that we have is, let's take a little easier question so that you people don't feel like it is getting very, complicated. This is from 0 to a, then this is from 0 to a minus x. We have f of x comma y, then we have dx dy. It is, now we have to change the order and we have to write down the limits. Okay, so I told you it's very simple, just write down the limits that is being given to you. So x is equal to 0 and x is equals to a, and now what you have to do, you have to choose our region of integration. So this is your y equals to 0, this is your x is equal to 0 as they have mentioned as limits. Now you have a line x plus y is equals to a, so this is your x plus y is equals to a, and then they have given x is equals to a because this is going to be your a comma 0 point, this is your 0 comma a. Now you can very clearly see this is your region of integration because x is from 0 to a, y is from 0 to a minus x. What you have to do, you have to change the order. Now you want to find out the limit of x in terms of y, तभी तो आप with respect to x पहले करोगे. तो आपने क्या करना है, पैरेलल टू x एक्सिस एक स्ट्रिप कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से a माइनस वाई पे. क्या ये स्ट्रिप में जो कर्व्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, अगर इस स्ट्रिप को कहीं पे भी ड्रॉ करूँ नहीं चेंज हो रहे हैं, तो मतलब ये एक ही इंटीग्रेशन में रहेगा. तो x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से a माइनस वाई, लेफ्ट टू राइट गए, बॉटम टू टॉप जाओ, y इक्वल टू 0 से y इज इक्वल्स टू a पे जा रहे हैं. दिस इज योर f ऑफ x कॉमा वाई डी वाई डी एक्स. तो हमने ऑर्डर भी चेंज कर दिया. ओके, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6. And what is that? The question number 6 that we have is, now we'll do again where we have to split our integral in two parts. Let's see if we can do that. Okay, so we have from 0 to a cos alpha, then from x tan alpha to we have square root of a square minus x square, f of x comma y dx dy. Always remember one thing, whenever you have any question, okay, so you just look at the limits and then the function that is being given to you. Okay, so you will get an idea. Okay, here the limit of y is in terms of x, so I have to integrate first with respect to y. But if you are not able to you are not able to integrate it with respect to y, तुरंत समझ जाना है कि ये क्वेश्चन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का है, और फिर आपको प्रोसेस पता है. फिर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग रहा है, ट्रस्ट मी, आप लिखना शुरू करो. आप लिमिट्स को लिखो, कर्व्स को ड्रॉ करो, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो, अपने आप वो इजी हो जाएगा. बट द पॉइंट इज आपको पहले शुरुआत करनी पड़ेगी. ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, हमें यहाँ पे ऑर्डर चेंज करना है. ठीक है, वी विल सी. पहले हम क्या करते हैं, लिमिट्स लिख लेते हैं. क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टैन अल्फा. तो आप सबको पता है ये y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन है, जहाँ पे m इज इक्वल टू टैन अल्फा है, यानी x एक्सिस के साथ जो स्ट्रेट लाइन है वो अल्फा एंगल बना रही है. ठीक है, देन क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो आपको पता है ये जो है ना, ये हमारे पास सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पे y की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगी. बट उन्होंने y पॉजिटिव चूज किया है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में. अब क्या दिया है आपको, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a cos alpha. नाउ वी विल सी वन बाय वन ऑल ऑफ देम. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी x एक्सिस y एक्सिस बना लेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू.
तो ये रही अपनी वाई एक्सिस एंड देन ये रही अपनी एक्स एक्सिस। देन हमको एक लाइन और ड्रॉ करनी है। अभी मैंने आपको समझाया y इज इक्वल टू एम एक्स, वो स्ट्रेट लाइन है, तो सपोज वो अल्फा डिग्री का एंगल बना रही थी, तो ये हमारी ये लाइन हो गई। ठीक है, ओके, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। दिस वन इज योर x इज इक्वल टू 0 क्योंकि दिया है, एंड देन ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज आर y इज इक्वल टू x tan अल्फा। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू सी दैट हमें एक सर्कल बनाना है। ठीक है, अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो आप कि ये सर्कल आपको पता है कि y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये यहाँ बना होगा ऑब्वियसली, कहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन ज़रा x की लिमिट भी तो देखो, 0 to a cos अल्फा, मतलब वो यहीं कहीं तो होगा। 0 से लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना हम, a cos अल्फा, तो मतलब हमको सर्कल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ कितने में बना देंगे, इतने में बना देंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक और कर्व बन गया, क्या, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बना। अब मैंने आपको बोला था जैसे ही दो जो कर्व्स हैं वो इंटरसेक्ट करें, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलने से आपको चौथे कर्व का आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि 3 तो हमने ड्रॉ कर लिए। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, किसका, y इज इक्वल टू एक्स टैन अल्फा का, एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a है या 1 है, देखते हैं, a है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे, रख देंगे x tan अल्फा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, देन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको इधर लाओगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा आपका क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आप देखो x की आपको 2 वैल्यू मिल रही है, लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, तो a cos अल्फा आएगा ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मतलब यही वो पॉइंट है जहाँ से ये चौथा वाला जो कर्व है अपना, वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे अपना x इज इक्वल्स टू a cos अल्फा, ये बन गई हमारी लाइन। ठीक है, चलो, दिस इज आर x इज इक्वल टू a cos अल्फा। अब जब ये x इज इक्वल टू a cos अल्फा है, तो ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो हमको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से निकाल लो, दिस इज योर a cos अल्फा, और जब आपने x को यहाँ a cos अल्फा रखा, तो इसको ब्रेक करो साइन अल्फा बाई cos अल्फा में, तो क्या आ जाएगा, a साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब रीजन चूज करना है, बहुत आसान है, 0 से a cos अल्फा मतलब लेफ्ट टू राइट, तो इतने ही पोर्शन में रहे होंगे हम लोग। फिर y कहाँ से कहाँ दिया, x tan अल्फा से सर्कल, x tan अल्फा से सर्कल, तो ऑब्वियसली रीजन मिल गया ना हमको। दिस इज आर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर आप ये चूज करते हो, ये चूज करते हो, तो आपको पता है y इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि हमारी लिमिट्स में दिया ही नहीं है, कर्व है ही नहीं। और अब हमको चेंज करना था ऑर्डर। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है, ये आपका a, 0 होगा, क्योंकि a रेडियस का सर्कल है, 0, a। अब हमको ऑर्डर चेंज करना है, तो मतलब हमको पहले विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है, यानी हमें x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो हम पैरेलल टू x एक्सिस एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ स्ट्रिप ड्रॉ करी और किसी बच्चे ने यहाँ ड्रॉ करी, तो अब जरा ऑब्जर्व करना, ये x इज इक्वल टू 0 से कहाँ जा रहा है, ये देखो y इज इक्वल टू एक्स टैन अल्फा है, यानी x इज इक्वल टू y कॉट अल्फा, यहाँ जा रहा है। और अगर मैं ऊपर किसी बच्चे ने स्ट्रिप ड्रॉ करी है उसको देखूं, तो x इज इक्वल टू 0 से, क्योंकि ये सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x की वैल्यू प्लस माइनस आएगी। बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमको पॉजिटिव चूज करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो कर्व्स बदल गए ना, बिल्कुल बदल गए कर्व हमारे पास। और ये कर्व्स बदल किस पॉइंट से रहे हैं, यहाँ देखो आप, y इज इक्वल्स टू कौन सा पॉइंट है हमारे पास, a साइन अल्फा। इसका क्या मतलब है, अब ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको देखना। जब मैं y इक्वल टू 0 से, ठीक है, सपोज ये हमारे पास 0, 0 पॉइंट है, सपोज क्या है, ठीक है, तो 0 से a साइन अल्फा, जब y की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 से a साइन अल्फा, तो आप और इतने पोर्शन में देखो, इस ट्राइंगल में अब जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ,
इस वाले में अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो और कहीं पे भी स्ट्रिप ड्रॉ करोगे तो वो कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से y कॉट अल्फा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ही y 0 से a साइन अल्फा है तो y x कहाँ से कहाँ है, 0 से y कॉट अल्फा है, f dy dx। अब जरा दूसरा पोर्शन देखना जो मैं वापस से हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, कि अब ये a साइन अल्फा से a पे अगर है, y a साइन अल्फा से a पे है, और अब ये वाला पोर्शन देखो आप, ऑरेंज वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे अगर आप कहीं भी स्ट्रिप ड्रॉ करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो कहाँ से कहाँ जा रही है, वो जा रही है 0 से स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे, और y कहाँ से कहाँ जा रहा है, a साइन अल्फा से कहाँ गया है वो, a पे, क्योंकि वो a रेडियस का सर्कल था, f dy dx। तो देखो ये कैसा क्वेश्चन था, ये ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे ऑर्डर चेंज करने के बाद एक इंटीग्रल स्प्लिट हुआ है दो इंटीग्रल्स। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना, क्वेश्चन सीम्स टू बी अ डिफिकल्ट वन फॉर यू, बट वंस यू विल स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन, वंस यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कब सॉल्व हो जाएगा। So the very first step is that you don't have to, be afraid of the question. Just write down the curves from the limits, draw the region of integration, see what is happening. Ultimately, you will get the answer. And the same thing happens in the exams also. You don't get scared of the questions. Try them. Once you will try them, you will get the answer, hopefully. Okay, so let's do a few more questions. So the question number 7 that I will do now is, from 0 से 2a and then from x square by 4a to we have 3a minus x, then we have f of x comma y dx dy. Okay, let's do one thing. Instead of solving it here, I am leaving this as a homework. Okay, what you have to do is that you have to change the order of integration, and then you will tell me what expression you all are getting. Okay, let's see how many of you can solve it by just seeing all these questions that I solved just now. So all of you try to answer it. Don't worry whether it is right or wrong. Right now this is not the purpose that whatever we are doing is right or wrong. The purpose is that we should start practicing the questions, because if you will start practicing the question, if today you are getting wrong answers, tomorrow definitely you will get the correct answer. Okay, so this I am leaving as a homework. Hopefully I'll be getting answers from all of you on comment box. Okay, so in the next session I will try few more questions, okay, here only in this session, ताकि आपको और पता लगे कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में कैसे लिमिट निकालते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें ये टॉपिक समझ आएगा। ओके, सो डोंट वरी, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन, बट बिफोर दैट आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ योर एंड्स। ओके, and then I will give you few more questions so that you can understand this topic a little more, and then all the PYQs. Trust me, if this session and the next session which I will take on change of order of integration, if you understood, then the third session, which is going to be all the previous year questions, and not only in JAM, in many other exams also like in GATE, if I will solve it, you will see that you are able to solve those questions even without my solution. Okay, so you just have to watch the lectures thoroughly and nicely. Okay, so that's it for this session. Thank you so much. Hope to see all of you in the next session.